Hello everyone. So in this session we will discuss section 20 of Hindu Adoption and Maintenance Act. And as you all know that we are now discussing about the maintenance part. In maintenance we have discussed regarding the maintenance of wives, that was covered under various provisions, and in the very last session, that was about section 19. Here we discussed about the provision of the maintenance of widowed daughter-in-law. If in your family there is a widowed daughter-in-law, then what will be the responsibility of Karta and whether she can claim maintenance from him or not? Everything we discussed. So those who have not watched very last session, on the top I'm providing you link, go and watch it out. And now we will discuss about the maintenance of children and aged parents. They also come in the category of dependents and they also have the provision of claiming maintenance from the family, from the like children from their father and aged parents from their son. They can claim maintenance. And what are the conditions necessary for this maintenance, for this claim? We will see under section 20. For this, you have to pay concentration. So before discussing this section 20 in detail, we have this our official mail address and contact number. Those who want to connect to us, kindly send your queries if you have any doubts to us and we will respond you as soon as possible. And here I'm telling you, just don't forget to subscribe. More you subscribe, more confidence we will get, and yes, more updated videos you will get. If you are already taken our membership plan and you are member of our channel, then already you know that we are providing so much extra offers to our members. So those who have not yet taken our membership plan, go and take it out. So section 20 is about maintenance of children and aged parents. Children, like your child whom you have given birth, or if you are stepfather or stepmother, let's see whether you will come in this category. And then we have this aged parents. So the obligation to maintain one's children and aged or infirm parents is personal obligation. अगर हम ये लॉ या ये कानून ये सेक्शन ना भी बनाएं, तो अगर हम मोरली ये देखें, अपनी पर्सनल ड्यूटी समझें, तो ये हर एक पर्सन की मोरल ड्यूटी है कि वो अपने बूढ़े माता पिता के भरण पोषण करे, उसका पालन पोषण करे, उसका खर्चा उठाए. एंड सेम वे एक पर्सन की ये भी ड्यूटी है, पर्सनल ड्यूटी कह सकते हैं हम, ऑब्लिगेशन कह सकते हैं, मोरल सपोर्ट कह सकते हैं, दे शुड प्रोवाइड टू देयर चिल्ड्रन. If you have given birth to them, then it's your responsibility, it's your duty to take care of them, to feed them, to take care about their education, living standard of living, everything. तो अगर हम इस सेक्शन के परे भी जाकर देखें, it is personal or moral duty of every person, of every citizen, to take care of their parents and their children. एंड पेरेंट्स कब? जब वो एजेड हो चुके हैं, इन्फर्म है, दे कैन नॉट, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग देमसेल्व्स. सो इट अराइजेज आउट ऑफ देयर पर्सनल रिलेशनशिप ऑफ पेरेंट एंड चाइल्ड की एक जो रिलेशनशिप है, आपका जो एक संबंध, एक पारिवारिक संबंध में जब आप बन जाते हो, तो आपकी ये एक ड्यूटी बन जाती है कि उनको आप मेंटेन करो. एंड इफ वी लुक आउट एट आवर ओल्ड हिंदू लॉ, जो हमारा पुराना हिंदू लॉ था, उसमें क्या था? फादर वॉज रिक्वायर्ड टू मेंटेन बोथ लेजिटिमेट एंड इलेजिटिमेट चिल्ड्रन. मीन्स जो मेल फैमिली मेंबर होते थे या मेल पर्सन जो है फैमिली में, फादर ही हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे उनके बच्चे लेजिटिमेट कैटेगरी के हों या इलेजिटिमेट कैटेगरी के हों, उनका ध्यान रखें, उनको मेंटेन करें. एंड द ऑब्लिगेशन वॉज इम्पोज्ड ऑन द सन अलोन. हिंदू लॉ ही में ही मेल person, means if पेरेंट हैड देयर डॉटर्स एंड देयर सन, तो वहाँ पर सिर्फ सन की ही ड्यूटी है कि उनको अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना है, उनको मेंटेन रखना है, उनके मेंटेनेंस क्लेम उठाना है. तो अर्लियर ओल्ड हिंदू लॉ में ये सिर्फ ड्यूटीज मेल, वी कैन से मेल पर्सन्स को दी गई थी. द ड्यूटी वॉज नॉट गिवन टू द फीमेल वन. सो दिस इज अबाउट ओल्ड हिंदू लॉ. Now
वी हैव आवर मॉडर्न हिंदू लॉ आफ्टर सर्टेन अमेंडमेंट्स, जो अब हमारा मॉडर्न हिंदू लॉ आया है, जो कि हम सेक्शन 20 पढ़ रहे हैं ऑफ दिस हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं अगर हम इसको कंपेयर करके देखें ओल्ड हिंदू लॉ से? सो दिस एक्ट हैज इम्पोज्ड द ऑब्लिगेशन ऑन बोथ द पेरेंट्स एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ लेजिटिमेट एंड इलेजिटिमेट चिल्ड्रन। मीन्स यहाँ पर अब सिर्फ एक फादर की ही ड्यूटी नहीं है कि वो अपने चिल्ड्रन को मेंटेन करें, उनकी मेंटेनेंस क्लेम उठाए। ये फादर की ही ड्यूटी नहीं है। नाउ इट कम्स टू बोथ द पेरेंट्स। नाउ इट्स ड्यूटी ऑफ फादर एज वेल एज मदर टू बियर द एक्सपेंसेस of living of their children. So now here we cover both the parents. I'm putting here star. This is the major change. Both the parents are now included in respect of their both legitimate and illegitimate children, right? And during the minority of the children, and makes it an obligation of sons and daughters to maintain the aged parents. तो यहाँ पर भी एक ब्यूटीफुल अमेंडमेंट की गई कि एजेड पेरेंट्स का ध्यान सिर्फ अब कानून के तहत सन की ही ड्यूटी नहीं है, इट इज़ द मोरल ड्यूटी और सपोर्ट ऑफ बोथ द वी कैन से चाइल्ड, वेदर इट इज़ अ सन और अ डॉटर। अगर एक पेरेंट्स के बेटे भी हैं बेटियां भी हैं तो ये बेटे बेटियों दोनों को मिलकर अपने पेरेंट्स का खर्चा उठाना है, ये हमारा हिंदू कानून हमें कहता है एज पर सेक्शन 20। एंड सेम वे फादर एंड मदर बोथ की ड्यूटी है टू बियर द एक्सपेंस ऑफ देयर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन ड्यूरिंग देयर माइनॉरिटी एज, मीन्स बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। आफ्टर 18 ईयर्स दे आर एलिजिबल कैपेबल ऑफ देमसेल्व्स कि वो अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। So I hope you understood this comparison between old and Hindu law. Now here very important thing what you need to understand is कि जो यहाँ पर word category में parents लिखा हुआ है या children लिखा हुआ है, यहाँ पे ये किन किन को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो चिल्ड्रन में तो आपको समझ में आ गया कि चिल्ड्रन कैटेगरी में लेजिटिमेट भी आ रहे हैं एंड इलेजिटिमेट भी आ रहे हैं, राइट? बट हेयर कम्स डाउट रिगार्डिंग द पेरेंट्स। पेरेंट्स में कौन इंक्लूडेड है? Okay, so if we look at this under the old Hindu law, if we अब फिर से कंपैरिजन करने का सोचेंगे हम, तो पेरेंट कैटेगरी में अगर हम अपने ओल्ड हिंदू लॉ में देखें तो दे नेवर इंक्लूडेड अ स्टेप पेरेंट। स्टेप पेरेंट्स इसमें इंक्लूडेड नहीं थे। स्टेप पेरेंट्स मीन्स लाइक इफ योर फादर हैज मैरिड टू अनदर वुमेन, शी विल बी योर स्टेप मदर। तो उन स्टेप मदर का मेंटेनेंस बियर करने का खर्चा आपको नहीं उठाना है, बिकॉज पेरेंट्स की कैटेगरी में वो नहीं आती। बट इफ वी लुक एट दिस सेक्शन 20 एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 20 ऑफ हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट राइट नाउ इन दिस मॉडर्न हिंदू लॉ, नाउ इट इंक्लूड्स अ चाइल्डलेस स्टेप मदर ऑल्सो। अब आप अगर आपके पेरेंट्स स्टेप मदर है कोई और उनको आगे कोई भी चाइल्ड नहीं है तो उस स्टेप मदर का खर्चा आपको ही बियर करना होगा। दिस इज व्हाट मेंटेनेंस एक्ट सेज राइट नाउ। बट स्टिल अभी डाउट किस पर है? स्टेप फादर जो है वो अभी भी इस कैटेगरी में इंक्लूड नहीं हुए हैं पेरेंट्स कैटेगरी में। स्टेप फादर इज स्टिल एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ पेरेंट। सो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बनता है, दिस इज अ मेजर डाउट रिगार्डिंग दीज पेरेंट्स जो मैंने अभी आपका सॉल्व किया है। कीप इट इन योर माइंड, मेक योर नोट्स दैट इन द पेरेंट्स कैटेगरी मेंटेनेंस में सेक्शन 20 में स्टेप मदर इज इंक्लूडेड इफ शी इज चाइल्डलेस, बट स्टेप फादर इज नॉट इंक्लूडेड, राइट? So with this, we understood this section 20 in detail. This was about the maintenance of aged parents and children. And in next session, we will discuss section 21 that will tell us about how many dependents we have. How many dependents are there जिनका maintenance का खर्चा एक single parent को या single person को उठाना पड़ रहा है as per this act. So for that, stay tuned, maintain continuity, keep watching, follow us through these ways. And if you can send your queries, we will solve it as soon as possible. Till then, have a nice day. Thank you.